After Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal announced a protest march to the BJP headquarters following the arrest of his personal assistant Bibhav Kumar on allegations of assaulting Aam Aadmi Party MP Swati Maliwal, Delhi police has beefed up security at the BJP headquarters ahead of the AAP's protest. In view of the proposed protest by AAP, Delhi police has issued an advisory as well, saying that traffic will remain heavy at DDU Marg, IP Marg, Minto Road and Vikas Marg. DDU Marg may be closed for traffic movement between 11 a.m. to 2 p.m. today. Well, meanwhile, reactions on this story are coming in. एक प्रधानमंत्री को, एक सिटिंग प्रधानमंत्री को सीधे एक चैलेंज देना कोई आसान बात नहीं है। वो दे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो जो भावना उनके मन में है और उनके साथियों के मन में होगी, वही भावना आज आम जनता के दिल में भी है और आज उस भावना का प्रदर्शन वो कर रहे हैं, तो इसमें उनको अवश्य बहुत सारे लोगों का इसमें उनको समर्थन मिलेगा और अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री इसका क्या रिएक्शन करेंगे। कि पुलिस वालों ने कब मार्च करने दिया है हमें? पुलिस वालों ने तो कभी नहीं मार्च किया, करने दिया। हमारे नेता तो जब गिरफ्तार कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी तो विरोध कर पा रही थी, चाहे वो कनॉट प्लेस पे करना चाहें या कहीं पे भी करना चाहें, मगर आम आदमी पार्टी के जैसे ही 100 लोग इकट्ठे होते थे उनको भर भर के जो है थानों के अंदर गिरफ्तार किया गया। तो दिल्ली पुलिस से आप और एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? देखिए, वो बेचारे नौकरी कर रहे हैं केंद्र सरकार की, और अगर नहीं मानेंगे केंद्र सरकार की तो तबादला कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, झूठे केस में उनको फंसा दिया जाएगा। ऐसे तो कई जो है उदाहरण है, तो उन विचारों से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सरकार बदलने जा रही है 4 जून को, फिर भी मस्ती जो है सरकार की अब कम नहीं हुई है। आज भी अपोजिशन को डराया धमकाया जा रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं मुंबई में भी हो रहा है। चोरी का पैसा बचाने के लिए गृह मंत्री खुद आते हैं मुलुंड में, जो पैसा हमने पकड़ा है गृह मंत्री को खुद आना पड़ता है। भाई, ये कौन सा कानून है? गृह मंत्री So these, of course, are the big developments we are tracking for you, where, of course, all eyes on the BJP headquarters, where the AAP is planning protest today. Mehendi Garg is joining us for more details on this story. Mehendi, security upped at the BJP headquarters in Delhi ahead of this protest? Well, yes, today after Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal have announced a big protest in Delhi right now. So security has been enhanced outside BJP headquarters, and also Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has said that he and other AAP leaders would go to the BJP headquarters and so that the Prime Minister can send anyone he wishes to jail. In that aspect, and taking care of all these statements that Arvind Kejriwal has said, Delhi police has been in an alert mode right now, and heavy security personnel have been deployed in front of the BJP headquarters. And also, if we talk about the Delhi police, then it has been said by Delhi police that no permission has been sought and Aam Aadmi Party leaders will not be allowed to march towards BJP headquarters. But after all these statements, also Aam Aadmi Party is very much ready and set to hold this protest against Bharatiya Janata Party, along with all the leaders, all the senior leaders, whether they are MLAs or MPs from the Aam Aadmi Party, along with Arvind Kejriwal. Apart from not having any permission to do this protest, they will move towards Bharatiya Janata Party's main headquarters, and all the preparations, security preparations have already been taken care of at DDU Marg at the BJP headquarters. Yes, sir. All right, Mehendi, stay with us. Sachin Rawal, Congress leader, is joining us on the broadcast. Sachin Rawal, we are, of course, learning of this big Aam Aadmi Party protest today. What do you make of it? देखिए, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की जो ये पूरी कार्रवाई हो रही है, ये एक तरह की ऐसी कार्रवाई है कि विपक्ष जो है उनके नेता अगर कुछ करते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसको एक्शन के रूप में लेता है। सचिन जी, ये इलेक्शन कमीशन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है। देखिए क्या है,
दिल्ली पुलिस का जो ये मामला है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे चीजें हो रही हैं। अभी जो आम आदमी पार्टी का प्रकरण हुआ जिसमें स्वाति मालिवाल के चीजें हुई हैं, तो मैं समझता हूं कि ये चीजें कहीं ना कहीं चुनावी चुनाव जो है उसको प्रभावित करने की चीजें हुई हैं। अब इसमें क्या है क्या नहीं, एफआईआर लिखी गई है, उसका एक पहलू सामने आया है, बट अभी चीजें आगे देखना होगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पे क्या स्पष्टीकरण आता है। स्वाति मालिवाल जी ने अपनी तरफ से उन्होंने आरोप लगाया है और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जब हम लोग अलायंस में साथ में आए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे देश में जो मेन इश्यूज हैं उन पर आवाज आ रही है। सचिन जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सचिन जी, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आज जो प्रदर्शन होगा आम आदमी पार्टी का, क्या संदेश देना चाह रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी दफ्तर जाकर? देखिए, आम आदमी पार्टी का अपना दल है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं दिल्ली में, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो जनाधार है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो आपको लगता है विभव कुमार निर्दोष है? देखिए, निर्दोष की बात जहां तक है वो तो अभी जब जांच होगी, जांच में क्लियर होगा कि कौन क्या रहता है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो चीजें हैं उसमें स्पष्टीकरण ये आ रहा है कि ये चुनाव के मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि जिस पर भी अगर इस तरह का प्रकरण सामने आता है तो पुलिस और मतलब ये सब जांच के दायरे में आता है। जब जांच पूरी होती है तब बता सकता है कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है तो उनका दल है, वो अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.